Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. ربنا زدنا علما وفهما. ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم کے تعارف کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اس سورت کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. سورہ مریم یہ وہ سورت ہے جو اس وقت پڑھی گئی تھی جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرنے کے لیے انہیں جو موقع میسر آیا تھا، تو یہی صورت جب نجاشی نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنا جس کا تذکرہ میں کروں گا اس واقعے کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو اس وقت جو کلام پاک سے جو صورت پڑھی گئی تھی وہ سورہ مریم کی ہی آیات تھی. اور جب یہ آیات پڑھی گئی نجاشی کے اس دربار میں، تو نجاشی کی جو داڑھی ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور یہی وجہ بنی کہ جو مہاجر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کو جو مکہ کے وہ مشرکین واپس لانا چاہتے تھے، تو وہ ان کی سازش ناکام ہو گئی. انہوں نے جو مختلف تحائف لیے ہوئے تھے نجاشی کے لیے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے، بلکہ وہ تحائف جو ہے انہیں لوٹا دیے گئے اور نجاشی کے دربار سے انہیں واپس بھیج دیا گیا. تو یہ واقعہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو ہے یہ مکہ کے اس دور کے اندر پیش آئی ہے جب ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ رہا تھا. اور ظلم و ستم میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، آج تو ہمیں کیا ہی اسلام کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آج اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، آج تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صبح کی جو فجر کی نماز ہے وہ ہم باجماعت ادا نہیں کر پاتے. باجماعت تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے گھروں کے اندر بھی وقت مقررہ پہ فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتے. اور ایک صحابہ کا ایمان دیکھیے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا خاندان، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کس کس قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی. انہیں مکہ کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا. جو تاجر تھے ان میں سے وہ جو بزنس کرنے والے تھے،
उनकी खिदमत ली जाती थी, जो उनमें से कोई खिदमत अंजाम देता था, तो उस खिदमत का उसे अज्र जो है नहीं दिया जाता था। मुख्तलिफ किस्म की परसिक्यूशंस थी, जो सहाबा के ऊपर की जाती थी, लेकिन परसिक्यूशंस का लेवल जो है वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुँच गया था। मतलब ये कहना आसान है, आज मैं जम्मू के अंदर मुकीम हूँ, मैं जानता हूँ कि गर्मी किस चीज़ का नाम है। यानी आज की इस गर्मी में जब बाहर निकलता है इंसान रोड में, तो इंसान का दिमाग जो है वो खौलने लगता है। नहीं मतलब वो जो लू जब चलती है, वो गर्म हवा जब चलती है, तो इंसान जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है। इस गर्मी का इंसान मुकाबला नहीं कर पाता। बहरहाल ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सब ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया इज़ ट्रॉपिकल कंट्री जो है, यहाँ की गर्मी का आलम एक है और हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरेबियन डेज़र्ट के अंदर वो दावत दे रहे हैं, तो वहाँ की गर्मी किस कदर होगी। तो वहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खब्बाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके दूसरे जो साथी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि पूरा आले यासिर हम देखते हैं, तो किस तरह की तकलीफ़ें जो हैं उन्हें दी गई। लेकिन उनकी ज़बान पे क्या जारी था? अहद, 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 अहद। तो लेकिन एक वक़्त वो भी आया कि ये तकलीफ़ जो है अब बर्दाश्त नहीं हो रही और एक सहाबी जिन पे ये ज़ुल्म हो रहा है, ग़ालिबन हज़रत खब्बाब बिन अल-अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अब हम मज़ीद इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुस्सा होते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है और उनसे कहते हैं कि क्या हो गया आपको? आपसे पहले की कौमों के ऊपर तो इससे भी ज़्यादा ज़ुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। उन्हें उनके सरों के ऊपर जो है वो उन्हें उनके सरों को आरों से चीरा गया और मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों के पहाड़ जो हैं उनके ऊपर तोड़े गए। तो आप क्यों इतना बेसब्री का मुज़ाहिरा कर रहे हो? सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आया चाहती है। और कुरान की वो आयत भी हमारे सामने है जिसमें अल्लाह ताला खुद अपने कलाम पाक के अंदर फरमाता है कि वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनु मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब। यानी इतना ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया, इतनी ज़्यादा परसिक्यूशन किया गया अगली कौमों के ऊपर, उस वक़्त के जो वो उनके मुखालिफिन थे, वक़्त के जो ज़ालिम थे, कि वक़्त का रसूल और उनके अहले ईमान पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? तो ऐसा ही रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत दे रहे थे, तो ये वो दौर था मक्का का कि इस किस्म की तकालीफ जो है सहाबा को दी जा रही थी। और इसी वजह से फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि आप जो है हबशा की तरफ आप तशरीफ़ ले जाइए। हबशा का जो बादशाह है, वो बहुत ही रहमदिल है, वो किसी के ऊपर ज़ुल्म नहीं करता, वो बहुत ही इंसाफ़ पसंद है। आप ऐसा कीजिए कि कुछ लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता हबशा की तरफ हिजरत करते चले जाइए आप, ताकि आपको अपने दीन पे कायम रहना आसान हो जाए। तो इस तरह से पहला काफ़िला जो अ, हबशा की तरफ रवाना होता है, वो 11 मर्दों और 4 औरतों पे मुश्तमिल होता है। बहरहाल ये मक्का के लोग बहुत कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत और हिकमत ये होती है कि वो हिजरत कर लें। वो बंदरगाह का नाम गालिबन उतबा बिन रबीआ कुछ इस तरह का नाम है, उस उतैबा बिन रबीआ बंदरगाह, उस बंदरगाह तक वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो तब तक निकल जाते हैं। तो इस तरह से पहला काफ़िला चला जाता है, फिर दूसरा काफ़िला इससे बड़ा होता है, जो 80 मर्दों पे, 11 औरतों पे और इसी तरह से 9 गैर कुरैशी मुसलमान होते हैं, जो इस काफ़िले के अंदर होते हैं और वो चला जाता है हबशा की हिजरत पे। अब देखिए इससे हुआ क्या? ये जो 80 नफूस थे, जिन 80 जो ये मर्द थे, 11 औरतें थी और इसी तरह से जो नॉन कुरैशाइट्स जो थे, जो नॉन कुरैशी, ये जो आप कह सकते हैं कि गैर कुरैशी जो थे, इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी की माँ है। तो बहरहाल कुरैश के अंदर एक हलचल पैदा हो गई कि हमारे घरों के अफ़राद हमसे छीने गए, तो वो कहाँ खामोश बैठने वाले थे। तो उन्होंने अपने
बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों में से 2 का इंतखाब किया, जिनमें से एक का नाम मुझे याद आ रहा है। आस अ, उमरो बिन आस और एक और उनके साथ उन्होंने भेज दिए और उन्हें कहा कि आप चले जाइए और नजाशी से कहिए कि ये भगौड़े हैं, ये भागे हुए हैं, इन्हें वापस भेज दीजिए और भी कहिए कि इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है, आपके दीन पे भी नहीं चलते हैं। तो ये बातें उनको बताई और उनको पूरी प्लानिंग के साथ भेज दिया कि आप उन्हें वापस ले आइए। बहरहाल जब वो नजाशी के दरबार में जाते हैं, सबसे पहले जो नजाशी के जो चेले-चपाटे जो होते हैं वहाँ, हर हर दौर के अंदर हम देखते हैं ये जो चेले वगैरह होते हैं यही सबसे ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जो उनके रियासत के जो कारिंदे हैं उन्हें रिश्वत दे दी। उन्होंने पहले ही उन्हें कहा कि हम जब दरबार के अंदर दाखिल होंगे तो आप हमारी तायीद करना। आप हमारी सपोर्ट में आगे आ जाना और हमारी बात की तायीद करना। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो दरबार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं तो नजाशी के सामने वो ये बात रखते हैं कि ये लोग तो हमारे यहाँ से यहाँ भाग कर आए हैं और इन्होंने एक नया ही दीन कोई किसी नए ही दीन पे ये अमल कर रहे हैं। अपना जो आबाई दीन है वो भी ये छोड़ छोड़ दिया है इन्होंने और एक बात मज़े की ये एक बात और आप सुनते जाइए, ये आपके दीन को भी नहीं मानते। ये आपके दीन को भी नहीं मानते, अपने आबाई दीन को भी छोड़ दिया है। अब कोई नया ही दीन है जिसे जिसके ऊपर ये अमल करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें हमारे साथ वापस भेज दीजिए। तो और वो जो दूसरे वो लोग होते हैं जिनको उन्होंने रिश्वत वगैरह दी होती है, तहाइफ दिए होते हैं, वो कहते हैं क्या हम सही कह रहे हैं ना हम? वो भी उनकी तायीद करते हैं, बिल्कुल सही है, इनको वापस भेज देना चाहिए। ये तो सही कह रहे हैं, ये इनके अपने ही लोग हैं। बहरहाल नजाशी जो है, वो बड़ा ही इंसाफ पसंद बादशाह होता है, वो कहता है नहीं, पहले मैं इन्हें भी सुनूँगा। फिर जब बुलाया जाता है, तो वो जो मुहाजिर होते हैं, उनमें से हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर करते हैं, सीरत की किताबों के अंदर वो दर्ज है। मुख्तसरन मैं बताऊँ कि उन्होंने कौन-सी बातें उनके सामने रखी। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, कैटेगोरिकल बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस माशरे की हालत बहुत ही ख़स्ता थी। हमारे माशरे के अंदर अख़लाक़ी अक़दार की कोई कदर व कीमत नहीं थी। हमारा माशरा मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों की आमा व जगह बना हुआ था। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके की तरफ हमें बुलाया, हमें अख़लाक़ी अक़दार से रोशनास कराया, हमारी माशरत को दुरुस्त किया। तो बहरहाल ये बातें जब उनके सामने वो रखते हैं, उसके बाद नजाशी जो है उनसे कहते हैं कि आप ज़रा वो कलाम मुझे सुनाइए पढ़ के, जो कलाम वो आपको सुनाते हैं, जो कलाम आपके सामने वो पेश करते हैं। तो उस वक़्त ये सूरह मरियम की कुछ आय मुबारका उनके सामने पेश करते हैं और यही सूरह मरियम की इब्तिदाई जो 2 रुकू जो हैं वो उसी पे मुश्तमिल हैं, जिसमें हज़रत ईसा अलैहि सलाम का तज़किरा है, हज़रत याहया अलैहि सलाम का तज़किरा है, हज़रत ज़करिया और इसी तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो ये इब्तिदाई आयत जब उनके सामने पेश करते हैं, तो उनकी आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने जो कलाम पढ़ा है, इसका सरचश्मा, इसका सोर्स और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कलाम हमारे सामने पेश करके चले गए हैं, उनका इन दोनों का सरचश्मा एक ही है। तो बहरहाल वो इस तमाम सिचुएशन को देख के वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ये दुरुस्त हैं अपने ये हम हमारे पास आए हैं, ये इस वजह से हमारे पास आए हैं क्योंकि ये हमारे इंसाफ से उम्मीद रखते हैं और ये वहाँ से भागकर इधर नहीं आते अगर इनको हमारे इंसाफ पे उम्मीद नहीं होती। तो बहरहाल वो उन्हें कहते हैं कि आप चले जाइए, आप आराम से रहिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो जो सफ़ीर सुफ़रा जो भेजे गए थे, जिनमें हज़रत उमरो बिन आस भी था, तो अब उन्होंने दूसरी चाल चली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इनको कहते हैं कि आप ज़रा इनसे पूछें कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम के मुतालिक आपका क्या अकीदा है? बहरहाल उन्हें पहले इसकी भनक लग जाती है, जो मुसलमान होते हैं, तो वो इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। और फिर वो वही आय मुबारका कुरान पाक की उनके सामने पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के बंदे थे, वो उसके रसूल थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने उनको इल्का किया था, तो वो वही बातें उनके सामने रखते हैं। तो इस पे नजाशी जो है,
वो घास का एक तिनका उठाता है और कहता है कि जो कुछ इन्होंने मर्तबा हज़रत ईसा अलैहि सलाम का बयान किया है, ना तो इससे वो ज़्यादा थे और ना इससे कम। बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने फरमाया है। और इसके बाद वो जो तहाइफ़ उन्होंने लाए होते हैं, उन तहाइफ़ को उनके मुँह पे दे मारते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं रिश्वत लेना पसंद नहीं करता। आप चले जाइए और अपनी ये रिश्वत जो आपने लाई थी, ये रिश्वत आप अपने साथ ले जाइए, ये मुसलमान कहीं भी नहीं जाएँगे। तो बहरहाल ये ये वाक़ा जो मैंने आपके सामने बयान किया है, इससे ज़माना नुज़ूल मुतय्यन हो जाता है, चूँकि ये सूरत हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत हबशा के बाद पढ़ी है, गोया इसका ज़माना नुज़ूल उससे पहले का। तो यहाँ से ज़माना नुज़ूल इसका मुतय्यन हो जाता है। और जो हालात भी मैंने आपके सामने, चूँकि अब हिजरत हबशा से पहले के हालात भी हमारे सामने हैं कि बहुत ही ज़ुल्म-ओ-सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था मुसलमानों पे, तो उस दौर के अंदर इस सूरत का नुज़ूल हुआ होगा। तो ये ज़माना नुज़ूल के मुतालिक चंद गुज़ारिशात थी। अब मैं आता हूँ इसके मज़ामीन की तरफ। कौन से मज़ामीन हैं जो इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं? देखिए, जो पहले 2 रुकू इस सूरा के अंदर आए हैं, पहले 2 रुकुओं के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इसी तरह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इनका जो है वाक़या पहले 2 रुकुओं के अंदर आता है। फिर तीसरे रुकू के अंदर जब हम पहुँचते हैं, तो तीसरे रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने बयान किया जाता है। उनका अपनी कौम से वहाँ से अपनी जिस कौम के अंदर वो पैदा हुए, वहाँ से हिजरत करना उनका, उनके साथ उनका मुकाबला जो है वो हमारे सामने पेश किया जाता है। और ये वाक़ा मुशरिकीन के सामने जिस वक़्त बयान किया जा रहा था, गोया ये मुशरिकीन को ये बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किरदार है, ये आप जिसको अपना बाप समझते हो, आबा व अजदाद में से आप मानते हो, आप जिनको अपना पेशवा मानते हो, मुसलमानों की मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। और उन मुखालिफिन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन हैं, उनकी मिसाल, गोया ये उन्हें एक आप कह सकते हैं कि इशारतन उन्हें इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो को मबज़ूल किया गया है। तमसीली अंदाज़ में उन्हें ये बताया गया है कि और उनकी जो वो जो मुखालिफिन थे, उनकी मिसाल आपकी है। और मुहाजिरीन को भी इसके अंदर ये बताया गया है इम्प्लिसिटली, यानी इब्हाम के अंदाज़ में, एक्सप्लिसिटली नहीं बल्कि इम्प्लिसिटली उन्हें ये बताया गया है कि देखिए, जिस तरह से जिस तरह से उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हैं, तो वो उनकी हिजरत जो है उनके मर्तबे को मज़ीद बुलंद करती है। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद जो है सरबुलंदी अता करता है। तो आप भी किसी किस्म की परेशानी की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वो उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला ने उन्हें सरबुलंदी अता की, इंशाअल्लाह अनकरीब अल्लाह ताला आपको भी सरबुलंदी अता करेगा। तो सब्र और तहम्मुल से काम लें। ये जो ज़ुल्म-ओ-सितम अभी आप पे हो रहा है, ये ज़ुल्म-ओ-सितम का दौर ख़त्म होने वाला है और अल्लाह ताला आपको कामयाबी व कामरानी से हमकिनार करने वाला है। तो दूसरे पहले 2 रुकू मैंने बता दिया, फिर ये तीसरे रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आएगा। अब इसके बाद वाला जो चौथा रुकू आता है, चौथे रुकू के अंदर मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा आता है। गोया उस रुकू के अंदर ये चीज़ हमें बावर कराई जाती है, तमाम नौए इंसानी को, बनी नौ इंसान को ये चीज़ समझाई जाती है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर आए, वो कोई नई दावत लेकर नहीं आए, बल्कि वो भी वही दावत लेकर आए। उन्होंने भी वहदानियत का वही पैगाम लोगों को सुनाया। उन्होंने भी बात से बादल मौत का वही पैगाम लोगों को सुनाया, जो पिछले अंबिया ने सुनाया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कोई नया पैगाम नहीं था। मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा जो है इस सूरत के अंदर आता है। फिर हम जब आगे चलते हैं, इस तरह से 4 रुकू कंप्लीट हो गए और आखिरी जो 2 रुकू हैं, आखिरी 2 रुकू यानी 5th एंड 6th, 5वें और छठे रुकू के अंदर मुशरिकीन मक्का जो हैं, जो कुफ़ार मक्का हैं, उनकी मुखालफत की गई है, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है उनके रवैये पे। और दूसरी तरफ से उसके शाना बशाना जो है जो अहले ईमान हैं, अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई गई है कि आप अपने इस राह हक पे कायम रहिए। आप जिस मिशन को लेकर उठे हैं, इस मिशन को आप मज़ीद आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अनकरीब आपको इसका सिला अता करेगा। गोया उन्हें खुशखबरी का पैगाम सुनाया जाता है। तो इस तरह से 6 रुकू जो हैं इख्तिताम पज़ीर होते हैं।
तो 6 रुकू के ऊपर ये सूरा मुश्तमिल है। पहले 2 रुकू के अंदर हज़रत ईसा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। फिर हम देखते हैं दूसरे रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तीसरे रुकू के अंदर चौथे रुकू के अंदर तमाम अंबिया का तज़किरा, हमारे तमाम नहीं बल्कि कुछ जो नामवर अंबिया हैं, उनका तज़किरा हमारे सामने आता है। और आखिरी 2 रुकू जो हैं, उनके अंदर कुफ़ारे मक्का को तंबीह की गई है, उनकी मुखालफत की गई है और अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई गई है। तो ये एक मैंने आपके सामने खाका पेश कर लिया। चूँकि वक़्त ख़त्म हो चुका है, सिर्फ़ मैं चंद निकात की तरफ मज़ीद आपकी तवज्जो चाहूँगा। इस सूरत के अंदाज़े बयान पे अगर हम गौर करें, तो इसके अंदाज़े बयान से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसके सौती अंदाज़ पे अगर आप गौर करें, तो आप देखिए, जैसे मैं पढ़ूँगा, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या। इसी तरह से शक़िय्या, फिर आप देखते हैं रज़िय्या, समय्या। तो ये हम काफ़िया आयात हैं। गोया इसके अंदर एक सौती खूबसूरती पाई जाती है। एक तो हो गया इसका सौती अंदाज़ जो है, ये देखिए आप, सौती अंदाज़ भी अल्लाह ताला ने कितना दिलनशीन इसके अंदर रखा है। एक सौती अंदाज़ नरम है और एक सौती अंदाज़ थोड़ा-सा गरम है। अब ये गरम वाला कौन-सा है? जिसमें अल्लाह ताला उनके उस रवैये की तरफ तज़किरा फरमाता है कि उन्होंने रहमान को के लिए ये बताया है कि उसने किसी को अपना लड़का बनाया हुआ है। बहुत ही बुरी बात है अगर उन उन और उनके इस कहने पे पूरा ज़मीन और आसमान फट जाएँ, वो शक हो जाएँ, इस तरह की बातें होती हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अंदाज़ इख्तियार किया गया है, तो वहाँ का अंदाज़ थोड़ा-सा सख्त है। और वहाँ पे जो अंदाज़ हमें देखने को मिलता है, उस अंदाज़ के अंदर मुशद्दद हमें वो काफ़िये के लास्ट पे जो हमें मुशद्दद मिलता है, जिससे यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको देखता हूँ, अगर मुझे मिलेगा यहाँ पे। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु लिश्शैतानि ख़फ़िय्या जअलना मुहम्मदन क़ाल रसूलन नबिय्या। जस्ट स्टे विद मी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए अंदाज़ आप एकदम से बिल्कुल, यहाँ पे भी हम काफ़िया वो अंदाज़ इख्तियार किया गया है, लेकिन यहाँ का आप अंदाज़ ही देखिए बदल जाता है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा। अब देखिए इद्दा, जब मैं इद्दा पढ़ता हूँ तो एकदम से आप देखिए सख्ती देखिए इसके अंदर कितनी। तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। देखिए हद्दा के अंदर सख्ती पाई जाती है। अन दअउ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। तो आप देखिए एकदम से आगे देखिए, फिर लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा। तो एकदम से सख्ती का अंदाज़ इसके अंदर आ जाता है। तो ये भी कुरान पाक का ही ख़ासा है, कुरान पाक का ही मौजज़ा है कि एक तरफ से माना भी अपने अंदर, इसके अंदर उसकी भी क्लाइमेक्स, उसकी भी महराज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम काफ़िया जो अंदाज़ है वो भी इख्तियार किया गया है। और फिर कहीं पे नरमी वाला कोई मौज़ू है, तो उसके अंदर वो नरमी का वो अंदाज़ पाया जाता है। और जहाँ पे थोड़ा गर्मी इख्तियार हो जाती है, गर्मी अल्लाह ताला को इख्तियार करनी होती है, तो वहाँ पे जहाँ हम काफ़िया को भी मेंटेन किया गया, माने को भी मेंटेन किया गया, वहीं पे ये सौती अंदाज़ जो है, ये भी अपनी पूरी आन, बान और शान के साथ हमें देखने को मिलता है। बहरहाल ये चंद अहम निकात थे जो इस सूरत के मौज़ू के अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की, इस पे गौर व फ़िक्र करने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप तमाम नाज़रीन व नाज़रात की कुरान पाक की साथ आपकी वालिहाना अक़ीदत को अपनी बारगाह इज़्ज़ती में बेहद कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। इसके मुताबिक मुझे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके मुताबिक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।